Okay, good morning. Sorry, good afternoon, everyone. Good So, afternoon, sir. good afternoon. Very less number of attendance. I don't know why. Okay, so here we go. So we have already seen something in chapter 1, chapter 2, and in chapter 3. Chapter 3, we were looking into the loop control structure, and we have seen what is the uses of break and continue. I hope you people are reading the book. I can only uh, expect that you people read. Again, I'm telling you, just must enter your name in chat box. So today we will see something like case control structure, which is nothing but switch. Switch. So we should eventually are. So after, who can answer the value of this function? Sorry, this program. Who can answer this? Program number J. It's a straightforward program. Hushain, Yes, sir. what is the answer of this Jth program? And Sama Kataria, Yes, sir. what's the answer? Can you explain? I think there should be an error. There should be an error. How many of you are agree that there should be an error? And why there is an error, Sama? Can you explain? In value of int I is 10. Okay. And then he's putting the condition that I equals to 20. So Mm-hmm. it So, won't print a computer buff. So so मतलब how it's ऊपर तो false? declare I equal to 20 is wrong, you think? yeah. Why? असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह तो डबल इक्वल टू आना चाहिए. Mm-hmm. Just wait, I have a call. तो वाइल में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा. Yes, yes, tell me. Actually, this is not an error at all. The value of I is 10. It's given that this I value of I is 10. Sir, it can be an infinite loop. Yeah, it is definitely an infinite loop. And why it's an infinite loop? Can you explain? क्योंकि वाइल में वो वैल्यू नहीं ले पा रहा है ना, तो फिर वो आगे प्रिंट होते जा रहा है. वैल्यू नहीं ले पा रहा मतलब? मतलब जैसे कि आई की वैल्यू 10 है और वो लूप में जा ही नहीं पा रहा है. मतलब जो कि वो कैसे समझाऊं, मतलब पढ़ते नहीं हो आप लोग? आई की वैल्यू जो है वो लूप में नहीं जा पा रही, जो कि सर मैं
हाँ हाँ मैं तो बताओ। सर अपन ने इससे ना वो स्टेटमेंट डिफाइन नहीं की थी जहाँ पे इसे स्टॉप होना है, कंडीशन स्टेटमेंट डिफाइन नहीं थी जहाँ पे स्टॉप होना है। हम्म। नहीं मैं तो एक बार और रिपीट करो, मैं ठीक से सुन नहीं। सर अपन ने यहाँ पे उसमें कंडीशन स्टेटमेंट डिफाइन नहीं की जहाँ पे अपने को बताना है कहाँ पे स्टॉप करना है लूप को। अभी जो यहाँ कंडीशन पर दिया है ये कंडीशन से क्या होगा ये बताओ मुझे, आई एम सर इंटरेस्टेड। ट्रू है, ट्रू हो जाएगी क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं हो रही तो वो प्रिंट यस, करके जाएगा। नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगी, और नॉन जीरो वैल्यू जब तक वाइल के अंदर होगा तब तक वाइल बंद नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 20 सेट कर दे रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हट के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। दिस इज नॉट ए इक्वल टू ऑपरेटर, लाइक इट्स नॉट ए comparison operator, it's a assignment operator. We are assigning 20 to I, and that's not an error at all. And after this, here value will be 20, so that is a non-zero value, and since it's a constant 20, it will not change anyway. That means this loop will go infinite number of times, and the same problem we have did in example also. People should look into it. I'm pretty unhappy with the performance of the batch now. Earlier I was happy. Yeah, this one is saying run but no error. For can you please upload to this? Okay, I will upload everything. Okay, so how many of you can answer this question? L. So float is equal to float x is equal to x is of type float and which value is 1.1, and we are checking the value, and later we print and decrement the value of x. So is सर there ये सिर्फ is एक ही बार रन हो रहा। एक ही बार रन होगा, ठीक है, और कोई 1.1 यानी इसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू मतलब आप आंसर बताओ क्या होगा। फाइनल आंसर आउटपुट में x की वैल्यू 1.1 ही आएगी। It will print the value of x. कितनी बार चलेगा लूप? एक ही बार। और कोई आंसर दे सकता है? श्लोक शर्मा? नो सर, आई डोंट नो। क्यों? So may I ask you why you don't know? Meaning, I just finished this chapter, and I think I finished this chapter twice in the syllabus. On this batch, I finished this chapter twice. Once I was writing in the very beginning, I was writing programs only. We learned by means of program, and in second round, I was just reading book for you. So how much effort you expect to learn a concept? These are enough. If still you are not getting meaning, you have to check yourself. So this is not acceptable that I don't know and all. I have covered line by line this book twice. So it is not acceptable at all. Anyway, where's Chetket? Chetket, just unmute your mic and answer me. Chetket.
Shwetkit Tiwari, just unmute your mic and just tell me the answer. If you are not listening, then you can exit. If you do not enter class actively, then you should exit. And I have to inform the authorities that these students have some sort of problem, and they will talk to your parents. And what's wrong with you? Yeah, Tezwan, you are right. So it's quite unfortunate. Anyway, this a value of it's a straightforward problem. I don't know. So value of x is 1.1, which is a float value. Whatever value, it's a mathematical, it's a number. It's a number in x. And we are checking whether 1.1 is equal to 1.1. Yes, true. True, then we will go print it. If this statement is true, then we can execute whatever inside. So it will print 1.1. Then 1.1 minus 0.1, that will become 1. So it will come back and check 1 equal to 1.1. No, false. So it will not enter and come out. So सर तो फिर तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा ना. एक आउटपुट आया ना 1.1. तो वो तो हमारे तो उन्होंने शो करी थी ना. हाँ, स्टार्टिंग में वहीं से हुई थी, तो फिर वापस वो थोड़ी शो करेगा वो. नहीं समझा. मतलब 1.1 से स्टार्टिंग ही हो रही है लूप की, हाँ, तो वो शो करेगा. अरे क्या बात कर रहे हो. जब 1.1 यहाँ आएगा तो ये ट्रू होगा या नहीं होगा, पहली बात बताओ. हो जाएगा. हो जाएगा तो इसके अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा. कर जाएगा. करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. होगा. हो जाएगा. जब होगा तो इस हाँ, टाइम पे x की वैल्यू क्या थी, इज 1.1. 1.1. तो प्रिंट कर देगा. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब फिर वापस जाएगा, चेक करेगा कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1.1, फॉल्स, कम आउट, एंड ऑफ प्रोग्राम. दैट सिंपल एज. इसका वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा. पहले ये बताओ व्हाट इज दिस. स्ट्रिंग है. सर कैरेक्टर. हाँ सर, आपके वैल्यू ले रहा हूँ ना वो. हाँ, ठीक है, ठीक है. अब बताओ क्या होगा. सर स्टेटमेंट ट्रू हो रही. स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 2 की आस्क की वैल्यू 1 की आस्क की वैल्यू से बड़ी है. तो लेस है, क्या गारंटी कर सकते हो. ठीक है. अब ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग देखो, सॉल्व करो, ग्रुप में डिस्कस करो. ऐसे सोने से कोई फायदा नहीं होने वाला. ठीक है. लेट मी प्रोसीड. देखिए ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, मैं इंडिविजुअल कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा. ये मेरा काम नहीं है. मेरा काम है आपको बताना वे आउट. अब यहाँ पे इस चैप्टर में विल सी अबाउट दी स्विच केसेस एंड इफ एल्स लैडर. आल्सो स्विच का काम क्या है. स्विच जो है वो इफ की तरह है. मैं जब बोल रहा हूँ इफ की तरह है, मतलब इफ जैसा नहीं है, इसके फंक्शनैलिटी इफ से मिलते हैं. यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इसके बारे में. तो इट इज ऑल्सो ए डिसीजन स्टेटमेंट. वी यूज इट टू टेक डिसीजन. और इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक कीवर्ड होता है स्विच, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है. ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर एक्सप्रेशन. मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर हमेशा रिटर्न करना चाहिए. ठीक है. और इसका एक ब्लॉक होता है. मतलब यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा, चलो वो बाद में देखेंगे. पहली बात कि ये एक स्विच कीवर्ड है. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा. एक्सप्रेशन क्या होगा अभी देखेंगे. और इसका अपना एक ब्लॉक होगा. इस ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल केसेस होंगे. केस 1, केस 2. अभी ये केस कीवर्ड फिक्स है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. ये केस कीवर्ड फिक्स है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस कांस्टेंट से मैच करता है. ये वाला कांस्टेंट, ना ये वाला कांस्टेंट, ना ये वाला कांस्टेंट. जिससे भी मैच करेगा
उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ केस 1 के बाद हमारा सेमी कॉलन होता है और उसके बाद स्टेटमेंट्स होते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल स्विच केस। स्विच केस का यूज होता है मेन्यू बनाने के लिए और भी बहुत सारे पर्पस के लिए का यूज होता है। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, द इंटीजर एक्सप्रेशन फॉलोइंग दिस स्विच कीवर्ड इन सी एक्सप्रेशन दैट विल यील्ड एन इंटीजर वैल्यू। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए का मतलब फ्लोट नहीं होनी चाहिए और कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ, explicitly I am telling you that that should not be there. It could be any integer 1, 2, 3 or any expression that evaluate to an integer. कोई भी डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसा हो जो कि फाइनली कैलकुलेट होके इंटीजर बन जाए, यानी a plus b हो, whatever. The result of case is followed by integer or character constant. तो यहाँ अब दूसरी बात देखो क्या है, कीवर्ड केस इज फॉलोड बाय एन इंटीजर और ए कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है या का कांस्टेंट हो सकता है। पहली बात, यहाँ वेरिएबल नहीं हो सकता, यहाँ कांस्टेंट ही होगा केस के बाद। और ये कांस्टेंट क्या होगा, या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। जैसे ये वाला केस है, देखो value of I equal to 2 and we are saying the switch I, मतलब I की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो कोई 2 दे रहा है तो ये केस सेटिस्फाई होगा। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ so that you can understand more. Is there any question in chat? So since we can make a 2-digit calculator, that is हाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं बस इसके यूजेस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये स्विच के अंदर जो भी है, ठीक है, अभी मैं आई की वैल्यू को फिक्स नहीं करूंगा। आई विल आस्क यूजर printf enter the value of I, scanf %t I। ओके, अभी देखो, अभी तुम क्या एंटर करोगे, जो भी आई की वैल्यू आएगी, यहाँ अगर यहाँ पे आई की वैल्यू यूजर 1 एंटर करेगा तो ये केस सेटिस्फाई होगा, 2 एंटर करेगा तो ये केस सेटिस्फाई होगा, 3 एंटर करेगा तो ये, अदरवाइज ये सेटिस्फाई होगा। आई एम डिफॉल्ट। ठीक है, so let's run this program and check what's the output. So enter the value of I am entering 3, so it should print I। यहाँ पे 3 आया, यहाँ 3 एंटर किया, यहाँ पे 3 आया, और 3 आने के कारण ये केस नहीं, ये केस नहीं, ये केस सेटिस्फाई हुआ। ओके, सो इट विल प्रिंट I am 3। अभी इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, वो भी देखेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आएगी अभी। तो क्या प्रिंट किया, चलो पहले मैं बैक जाता हूँ, सेव करते हैं, और then I am entering something beyond 1 2 3। 1 2 3 के बाहर क्या प्रिंट करता हूँ, सपोज 8 एंटर किया, तो क्या हुआ, I am in default, मतलब ये तीनों ही केस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डिफॉल्ट प्रिंट हुआ है।
Now I am entering 3, तो कौन सा केस सेटिस्फाई होना चाहिए? केस थर्ड। तो क्या प्रिंट किया? आई एम इन केस 3, आई एम इन डिफॉल्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। चलो, सो प्रॉब्लम हो गया। अभी 2 देखते हैं, एंटर 2 करते हैं। 2 एंटर करेंगे तो आई एम इन केस 2, 3 और ये तीनों ही प्रिंट कर दिया। So, ये तो ट्रबल हो रहा है। ऐसा कंटिन्यू होगा क्या? सो लेट अस चेक 1। यस, सब जगह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये केस तो सेटिस्फाई कर जा रहा है और ये वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। एक्चुअली अगर ये इसमें कुछ ऐसा कंडीशनिंग तो नहीं है ना, तो कोई भी वैलिड वैल्यू अगर पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है तो इसमें तो घुसेगा ही, साथ साथ इस सबको प्रिंट करेगा। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग हर ब्लॉक में क्या करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ब्रेक क्या करता है? अगर एक बार भी यहाँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसके बाद ब्रेक होगा। ब्रेक क्या करेगा? पहला जो कर्ली ब्रेस होगा इससे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो एवरीवेयर अगर हम लोग देखते हैं 2 जगह पर ब्रेक यूज करते हैं और 2 जगह पर ब्रेक यूज नहीं करते हैं, तब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। यहाँ ब्रेक यूज करने नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज एंटरिंग फर्स्ट टाइम 3 एंटर करता हूँ। जब 3 एंटर किया तो पहले क्या ये दोनों प्रिंट हो रहा था, अभी क्या होगा? पहले ये प्रिंट होगा और उसका ब्रेक आएगा, तो ब्रेक आएगा तो क्या करेगा? सीधा इसको बाहर कर देगा स्विच से, तो एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी 2 वाले केस को चेक करते हैं। 2 में हमने ब्रेक नहीं डाला हुआ। सो इफ वी इट से 2, तो 2 के केस में क्या होगा? यहाँ आएगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ब्रेक नहीं है तो फिर अगले को भी प्रिंट कर देगा, है ना? और फिर यहाँ ब्रेक मिल जाएगा तो इसके आगे नहीं जाएगा। देखो ये हो गया ना। इट मीन्स वी शुड पुट break is safe and allow, and now your switch is working fine. स्विच जो है अभी वर्क करेगा, यानी हर स्विच स्टेटमेंट का जो लास्ट स्टेटमेंट होगा केस का वो एक ब्रेक स्टेटमेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Getting my point? Okay, this one. Sir, if else may रखते देना is our case, okay. Then okay, sir, okay, yes. Arjun is saying yes. I'm asking to everyone whether it is clear to you or not. Samait saying yes, Abhay is yes, Manav is yes, Hussain yes, Arihant yes. Okay, Sen, Manav, Shitket yes. Okay. So now yes, okay. So if it is not yes earlier, you should ask, है ना? अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हम लोग दे के देखते हैं। सपोज आई की वैल्यू जो है मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू लेता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। एंड देन टेक इट एज ए फ्लोट, है ना? चेक करते हैं कि क्या सब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। ये प्रोग्राम के साथ ना प्ले करना है। क्या एरर आ गया? देखो अभी ये क्या बोल रहा है? स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। मतलब ये जो क्वांटिटी आप तुम डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, ये इंटीजर ही नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो वी शुड डिफाइन इट एज इंटीजर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? कैन वी से I equal to 2? कैन वी पुट कंडीशन? एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि फाइनली कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 0 and 1, and 0 and 1 are integer, so it will work. Can we say I plus I plus I? So see, yes, fine, working. I'm entering 1, तो 1 एंटर करेंगे तो क्या होगा? I plus I 2 जाएगा। केस कौन सा सेटिस्फाई होगा? सेकंड वाला नहीं, डिफॉल्ट केस सेटिस्फाई हुआ। क्यों? Why it is taking सर यहाँ default पे case? केस 1 और 2 और 3 रन नहीं हो रहे, इसलिए डिफॉल्ट वाला रन होगा। सर परसेंट एफ लिया है सर अपन ने, तो वो इंटीजर वैल्यू Let me check.
ठीक है, देखो केस 2 ले रहा है ना, अभी 1 एंटर 1 कर रहे हैं तो केस 2 ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रही है, इंटीजर वैल्यू 2, 1 + 1 = 2, सो ये इस केस को मैच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द केस। इस कंडीशन को हम लोग कैसे पुट करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर मैं इस पे कुछ भी व्हाटएवर, मगर यहाँ पे वही हो जो रिटर्न करे क्या, कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करे। सो दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन। तो ये वाला केस हम लोग समझ गए। और डिफॉल्ट कब होता है? जब ऊपर का कोई भी केस नहीं मैच करेगा तो डिफॉल्ट चलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है ये मैंने बता दिया है ना, इसलिए देखो ये अगले प्रोग्राम में इसने ब्रेक लगाया है। और ये तो पूरा कैसे स्विच चल रहा है, केस सेटिस्फाई हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो इसको चेक करेगा, फिर नहीं होगा तो इसको चेक करेगा, नहीं होने से फिर इसको चेक करेगा, लाइकवाइज। ठीक है। और टिप्स एंड ट्रैप्स, टिप्स एंड ट्रैप्स में क्या बता रहा है? पहला क्या है? टिप कि अर्लियर प्रोग्राम दैट यूजेस स्विच मे गिव यू द रॉन्ग इंप्रेशन दैट you can use only cases arranged in ascending order 1 2 3 4 default। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बता रहा है ये। देखो नीचे है क्या प्रोग्राम? हाँ, मतलब यहाँ पे तुमको इंप्रेशन मिल रहा होगा पिछले वाले प्रोग्राम में, इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3 फिर ब्रेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसेस को तुम कैसे भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, है ना। ये पहले कोई भी नंबर डिजिट हो सकता है, इसका मतलब ये है कि इस केस को तुम पहले लिख सकते हो, उस केस को बाद में लिख सकते हो। इससे कोई प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो पहला टिप ये था जो तुमको मिला, यू कैन पुट एनी ऑर्डर। सेकंड क्या है? यू आर ऑल्सो अलाउड टू यूज कैर वैल्यू इन केस एंड स्विच एज सोन इन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग कैर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर का कांस्टेंट देना होगा, और कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट से क्रिएट होता है। ठीक है, ये बातें याद रखो, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सी रिप्लेस क्या किससे हो जाएगा? सी की जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, है ना। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम था, इन दिस प्रोग्राम वी कैन कन्वर्ट आई टू कैर। ठीक है, एंड वी कैन पुट सी हियर। अभी मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है, फिर आगे जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया, सपोज आई एम एंटरिंग ए, तो डिफॉल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं किया। एक्चुअली मुझे क्या होना चाहिए था, मैं यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लिख देता ए, यहाँ पे लिख देता कैपिटल ए, और यहाँ पे मैं लिख देता सपोज हैश। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ स्मॉल ए। स्मॉल ए किसका है? केस 1, है ना, लिख रहा है। नाउ इफ आई एंटर कैपिटल ए, तो केस 2, है ना, ये ऊपर वाला। नाउ वी एंटर ए हैश सिंबल, केस 3, है ना, परफेक्टली मैच कर रहा है। तो जब कभी भी हमें मैचिंग टाइप काइंड ऑफ हो, ये कैरेक्टर हो तो कुछ ऐसा हो, ऐसा कैरेक्टर हो तो ऐसा हो। मेन्यू में यही होता है ना कि इसके लिए ये वाई के लिए यस प्रेस करो, नो के लिए एन प्रेस करो, और यस प्रेस करने पे कुछ होता है, नो प्रेस करने पे कुछ और होता है। तो काइंड ऑफ टास्क वी कैन यूज। At times, we may want to execute common set of statement for multiple case. कभी-कभी हम लोग सारे स्टेप्स के लिए कुछ-कुछ कॉमन चीजें करना चाहते हैं। जैसे कि 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें हम बोलेंगे कि ये जो है जिसने भी एंटर किया है वो ए है। तो हम लोग केस के बाद कुछ ब्रेक नहीं डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये दोनों ही केस को एक ही कंसीडर करेगा। जैसे हम इफ में क्या करते थे कि 2 कंडीशन पुट करते थे, ये हो या ये हो, या ये दोनों होने पे। तो वही वाली फीलिंग यहाँ भी है, या चाहे तुम ए एंटर करो, चाहे कैपिटल ए एंटर करो, कुछ भी एंटर करो, ये इस ब्लॉक को प्रिंट करेगा और यहाँ के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो मल्टीपल जो हमारे पास वैल्यूज है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं।
Okay, even if there are multiple statements to execute in each case, there is no need to enclose them with a pair of braces. तो if else की तरह हमें multiple को किसी भी braces की जरूरत नहीं है, जैसे if else में यूज करते थे. Okay, and then every statement in switch must belong to some case. हर स्टेटमेंट जो है वो किसी न किसी केस से बिलोंग करना चाहिए. मतलब स्विच के अंदर जितने सारे भी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट जो है वो किसी न किसी केस के अंदर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि वो किसी केस के बाहर. सपोज ये प्रिंट स्टेटमेंट को तुम यहाँ ऊपर भी लिख दो, सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे, तो ये नहीं चलेगा. दैट इज नॉट अलाउड. आप चेक कर सकते हो. अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करता हूँ तो क्या होता है, दैट वी विल चेक. सबसे बिना किसी केस के अंदर लिखा हुआ, ये सबसे बाहर में है. दो एट दिस मोमेंट इट मे प्रिंट, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ठीक है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है. कुछ हुआ, वन प्रिंट किया हमने, तो ये तो किसी केस के अंदर नहीं था, इसको प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ. बाय डिफॉल्ट ये इसको प्रिंट कर दिया. सो दिस हैज नो इफेक्ट एट ऑल. ये एरर नहीं देगा आपको, लेकिन इससे कोई मिलेगा नहीं. ये जैसे यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, डिक्लेरेशन जो है वो ठीक नहीं है, आपको ठीक करना चाहिए एक्सेट्रा. आप फिर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दिस सेइंग. यहाँ बोल रहा है मैंने कि यहाँ प्रिंट ऊपर यूज कर लोगे तो ये प्रिंट को कोई देखेगा ही नहीं. स्विच तो बस केस को देखेगा, केस मैच किया, उसके अंदर का जो भी है वो सब एग्जीक्यूट करेगा. If we have no default case, then program simply fall through the entire switch and continue with the next instruction. अगर मान लो इस यहाँ से मैंने स्विच यहाँ से मैंने डिफॉल्ट केस को हटा लिया, तो क्या होगा, अनमैच्ड केस में क्या होगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी. से क्या होगा अगर मैंने सब कुछ को हटा लिया. अब अगर कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे बाहर होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं करेगा, ये प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, सो लेट अस सी. अगर मैं कैपिटल ए नहीं बी एंटर करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम बस जस्ट एंड हो जाएगा, है ना. मतलब इस स्कोप से बाहर चला जाएगा. So if switch is switch a replacement of if and if, yes or no? Yes, because it offers a better way of writing program as compared to if, and no, because it's certain situation we are left with no choice but to use if. है ना. तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये उसका रिप्लेसमेंट है. हाँ, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी स्विच जो है वो इफ से ज्यादा अच्छा माना जाता है लिखने के स्टाइल के तौर पे. और लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे स्विच यूज ही नहीं कर सकते हैं, इफ को यूज करना आसान है. तो disadvantage of switch is that one cannot have a case जिसमें कि हम केस में कोई कंडीशन चेक कर सके. ऐसा कभी स्विच हो ही नहीं सकता है. मतलब ये जो केस है, केस में हमारे पास ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी. यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं चेक कर सकते. ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है स्विच का. ठीक है, तो anyway we will see rest of the things in next lecture. Read this one and we will continue rest from the next lecture onwards. Any query? If everything is clear, write yes in chat box and exit from here. Okay, Arihant, Arjun and Chetketu said